very difficult for somebody as finite as me to talk about somebody as infinite as Guruji. So we have had the fortune of being with Guruji, and even before we met Guruji, we were fortunate to be with some divine souls and spiritual masters. But when we came in physical contact with Guruji, when he was in physical form, it never appeared to us as if we were not with Guruji even earlier. हमें हमेशा यही लगा कि ये एक लार्जर डिजाइन में गुरुजी का एक प्रोसेस है, उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है. हम पहले भी उनसे कनेक्टेड थे और उसके बाद भी, मिलने के बाद भी, वी वर कनेक्टेड विद हिम. एंड दिस कंटिन्यूड व्हेन वी वर विद गुरुजी व्हेन ही वाज इन हिज चोला. और कुछ साल, पिछले 8-10 साल कुछ ऐसे गुजरे हैं जिसको हम ये कहेंगे कि पीरियड ऑफ इंटेंस चर्निंग जिसको बोलते हैं, बोथ एट द स्पिरिचुअल लेवल एंड ऑल्सो एट द मटेरियल लेवल. तो उसकी इंप्लीकेशन स्पिरिचुअल लेवल पे भी हैं, मटेरियल लेवल पे भी हैं. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि टेंजिबल हैं, जो कि और लोगों को भी दिखती हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद शब्दों में हम नहीं उसका बयान कर सकते, वर्णन कर सकते. तो इन सारे सीरीज में, हालांकि ये बहुत लंबी बात हो जाती है, इस सारे सीरीज में गुरुजी हैज बीन गाइडिंग, preparing us to go through certain experiences where it was very evident that there's some karmic cleansing, some karmic debts have to be paid. They are being paid or cleansed with Guruji's blessings and under his direct control. We stayed in Delhi, then moved out, then came back to Delhi. It was all appeared as if Guruji had orchestrated that. Last year, पिछले साल, we came back to Delhi, and when I came to Delhi, so we were in Delhi Cant, and there was a small house in Delhi Cant, a temporary kind of a house. It was not a proper house as such, जो कि हमको उस वक्त मिला जिसमें हमें रहना था. और शुरू में देख करके थोड़ा बहुत ज्यादा इलेटेड फील नहीं किया कि भाई इसमें रहना पड़ेगा, इसमें तो काफी काम करना पड़ेगा. तो वो काम करने के साथ साथ एक चीज जो माय वाइफ इज स्टैंडिंग हियर, शी सेड कि आप एक चीज कर दीजिए, इसके अंदर खिड़कियों के अंदर ग्रिल्स होती हैं, तो आप वो ग्रिल्स जरा निकलवा दो. आई सेड इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड. ही सेड नहीं, आई एम गेटिंग सम इंडिकेशन दैट ये ग्रिल आप निकलवा दो. तो ग्रिल निकलवा करके वी पुट इट ऑन टू दी विंडो इटसेल्फ. तो विंडो के बीच में वो जो उसका जो मूवेबल पोर्शन होता है उस पे लगा दिया. आई विल कम बैक टू इट, व्हाई, हाउ द लार्जर डिजाइन प्लेड आउट. उसके बाद देन वी स्टार्टेड स्टेइंग देयर, एंड वी स्टेड देयर फॉर 2-3 months, and in those 2-3 months it was amply clear and very evident that there's something which is moving towards, or a lot of things are moving towards something which is very significant. And that thing actually happened. So this was sometime in the month of February this year itself. फरवरी 15 की बात है. सर्दी थी, बाहर बारिश हो रही थी, एंड वी वर स्लीपिंग नाइट टाइम, 2:30 का टाइम. आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, and the house was such that I was on one side of the house in my room, and my wife and my daughters were on the other side of the house across a main room, and my mother was adjacent to me in the side room, next room. So अगर इस सिनेरियो को आप विजुलाइज करेंगे तो मैं सो रहा हूं अपना कमरे में, my wife and daughters are sleeping on the other side of the main room, and my mother is on the next room right next to me. Suddenly around 2:30 or so, I heard some sounds, कुछ noise, कुछ ऐसा शोर जो कि बड़ा unusual था, मतलब, और comfortable feeling नहीं दे रहा था. So I thought कि why, you don't want to think about something uncomfortable,
चलो सो जाते हैं, सुबह देखेंगे. But then it became louder, it became more uncomfortable, and then I heard my mother on the next room. मेरा दरवाजा बंद था, तो I didn't see anything, but I could hear it. My mother's room was partially open, so I could hear her shout that there is fire, आग है. I said, now I have to, there's something you have to react that time. So I quickly got up and वो दरवाजा खोला. अपना दरवाजा खोलने के बाद it was something like one of the scariest scenes of my life. वो आप पिक्चरों में देखते हो कि बहुत इंटेंस सिनेरियो, तो बट रियलिटी में जब आप उसको देखते हो, सडनली फॉर अ सेकंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड यू फील इट कांट हैपन, ये नहीं हो सकता. बिकॉज उस कमरे में उस वक्त लाइट जल रही थी और लाइट में अपने रूम से वो 4-5 फुट पे नहीं देख सकता था. इट वॉज एज डार्क. वो जो सूट था सारा का सारा, वो सारा सब कुछ जल करके वो पूरा काला हो गया था कमरा. सारी दीवारें काली हो गई थी और वो ट्यूबलाइट जो जल रही थी वो भी फिर बंद हो गई, क्योंकि वो भी मेल्ट हो रही थी. और जो फैन था वो भी मेल्ट होकर के टपक रहा था. देखा नहीं, बट जब उसको बाद में देखा गया कि वो ये हालत में था. तो दिस वाज द स्टेट ऑफ दैट रूम. इतना हॉट, इतना हीट उसमें थी. और जैसे ही मैं उसमें, सो इमीडिएटली द फर्स्ट इंस्टेंट वाज कि अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या हाल है. हो सकता है वो इसमें कहीं अभी बर्न हो गए, फ्राई हो गए, रोस्ट हो गए, आई डोंट नो. सो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू गो इनटू इट and then locate whosoever is wherever. And I took one step and I could not take second step because it was as hot as probably a furnace. And I tried to turn back. I couldn't turn back because it was total disorientation. I could not breathe because everything was suffocating. Everything was inside. And after that, I heard my mother. She's also yelling at some place. By that time, she had moved to the window of her room where she could probably stand and breathe by keeping her face outside. But udhar tak aag nahi thi. And I started moving towards somewhere I don't know. I'll come back to it a little later. And uske baad I lost consciousness. Came back. I was in hospital. नहीं, when I came out, probably बाहर बारिश हो रही थी, पानी वगैरह गिरा, then I regained consciousness. अब इस स्टेज पर there was one young girl who was on duty. She was trying to put me in her small Maruti car to take me to the hospital because that was the only thing available. And then we moved via base hospital to the RR. And first 2 days, I was trying to tell my wife and others, external burns तो ठीक है, but अंदर there's something I'm trying to breathe, but वो अंदर कुछ जा नहीं रहा है. Okay, so I was trying to hold on to whatever my old pranayam practice, and I sustained. 2 दिन तो किसी तरीके से sustain किया वो प्राणायाम करके, but finally stamina gave up, and that is the time doctors saw it inside. They said there's nothing left inside, everything is charred. 80% lungs are burnt, and it was, my wife had seen it, so. And that's what they told her, there's no way he can survive. Okay, it's difficult. That was the state where she kept a photograph in my ICU. And I was all the time looking at the photograph and trying to, moment there was that intense, extreme discomfort. So I would want to connect with Guruji, though physical pain remained. But whenever I connected, हाँ, जब भी मैंने कनेक्ट किया तो ऐसे लगा जैसे एट सम लेवल, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे वो थोड़ा सा जैसे शेयर हो गया हो. और ये सिचुएशन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं. व्हेन आई वाज वेंटिलेटर तब तो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी, मालूम नहीं. और उसमें कुछ ऐसे टाइम था जबकि मुझे ये लगा शायद मैं अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं हूं, शायद एक ऐसी स्टेट है कि मैं बाहर भी नहीं हूं.
और वो स्टेट ऐसी थी जो मेरी वाइफ बताएगी, जब डॉक्टर्स ने प्रोबेबली ये सोच लिया था कि अभी तो रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ मैसेजेस जो उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस दौरान गुरुजी से कनेक्ट होने पर मिले, तो उससे ये बिल्कुल क्लियर था इन आवर ओन माइंड कि गुरुजी हैज बीन गाइडिंग दिस। वो डायरेक्टली इसको देख रहे हैं। और जब हॉस्पिटल से बाहर निकले, इसको जस्ट टू कट इट शॉर्ट, पूरा ये करीब 2 महीने की ये प्रोसेस रही। तो फर्स्ट थिंग जब हॉस्पिटल के इंचार्ज कमांडेंट को जब मैं मिलने गया जाने से पहले, तो उसने यही बोला, ये एज फार एज वी आर कंसर्न ये एक मिरेकल है। अब हमें नहीं पता चीजें कैसे हुई हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, वी डिड वॉट एवर वी डिड, बट इट्स अ मिरेकल। एंड आई जस्ट टेल यू द पोर्शन व्हेन आई वाज अनकॉन्शियस, जब ये कॉन्शियस थी, एंड व्हाट हैपेंड। सो क्विकली शी विल जस्ट कम्युनिकेट दैट। Jai Guruji, with Guruji's permission. This is not a satsang. Actually, it's very unusual. Certain things in the satsang which can't be conveyed even in 2 hours. मैं सिर्फ 2-3 क्रिटिकल चीजें शेयर करना चाहती हूँ इस होल प्रोसेस में, क्योंकि ये तो क्रिटिकल स्टेट में थे, अनकॉन्शियस थे। उस दौरान हो क्या रहा था, इमेजिन कर लीजिए कि हमारे घर आग लग चुकी है, उसमें कुछ चीजें रिट्रीवेबल हैं, कुछ इरिट्रीवेबल हैं। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं मार्च 7 से 10th के, और हमारे पास घर नहीं है और ही इज क्रिटिकल। 3 चीजें इसमें बहुत क्रूशियल हैं। ए कि डॉक्टर्स ने मेरे को सेकंड डे ये बहुत क्लियर कट कह दिया था कि मैडम आप इसमें कुछ होप नहीं है। आप, हमने अपनी जिंदगी में, एंड दे वर द टॉप डॉक्टर्स ऑफ ऑल HODs ऑफ RR, कि हमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। 80% लंग्स बर्न हो गई हैं और ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस 100% बर्न हो गया। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया और मैंने HOD से रूम में बैठी थी, 2 ही सेंटेंस कहे। आई सेड, आपका कर्म आपकी जगह है, मेरे गुरु का कर्म उनकी जगह है। ही विल वॉक आउट ऑफ दिस। ही couldn't बिलीव इट। ही एक्चुअली थॉट, बिकॉज ही कन्वेड, हमारे 5 परिवार सिर्फ संगत के मेरे घर में उस टाइम रहने आते थे बारी बारी, क्योंकि खाना नहीं बन सकता था। दोनों लड़कियां ट्रॉमा में थी, दे हैड गॉन थ्रू दिस। तो वो परिवार, एक परिवार रोज रात को रुकता था, मैं सारा टाइम RR में होती थी। तो मैंने यही कहा कि आप देखेंगे कि ये वॉक करते हुए यहाँ से रिकवर होके बाहर जाएंगे। Now please, what I want to tell you is कि मैंने कभी भी उस दौरान गुरुजी को प्रे नहीं किया कि ये इस चीज से बाहर आए। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि अगर ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है तो आपने हमें इस स्टेज से गुजरने दिया है, या इस स्टेज से आपने हमें इसमें डाला है, तो मेरा सर आपके सामने झुका है, जो आपका वर्डिक्ट है वो मुझे मंजूर है। और दूसरी बात, कोई भी हमारे जो रिलेटिव्स थे, मैंने उनसे सबको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कोई हॉस्पिटल में नहीं आएगा, कोई मिलने नहीं आएगा। एक आदमी सबको रोज इनकी कंडीशन के बारे में SMS करेगा। उसका रीजन ये था कि जब कोई भी हमें मिलने आता है वो एक अफसोस के भाव से आ रहा है, एक नेगेटिविटी लेके आ रहा है। और मेरे लिए ये बहुत क्रूशियल था। मैं जानती थी कि ये इतनी क्रिटिकल स्टेज थी मेरे बच्चों और हस्बैंड के लिए कि एक मेरे को एक वॉल क्रिएट करनी थी पॉजिटिविटी की, कि कोई भी दुख भरी चीज माइंड में लेके नहीं आए। दैट इज द मैसेज आई वाज गेटिंग फ्रॉम गुरुजी। सो दिस वाज द सेकंड थिंग कि मेरे बच्चों को 1 महीने तक ये पता भी नहीं था कि उनके फादर किस स्टेज से गुजरे हैं। मैंने उनसे इतना ही कहा था कि वो उनको बस बैंडेजेस कर रहे हैं, आपको तो पता है हॉस्पिटल में। माई किड्स डिडंट नो कि व्हाट द फादर वाज, बिकॉज जो संगत के परिवार हमारे घर में आते थे, आई टोल्ड देम कि हम आपने ऐसे यहाँ रहना जैसे कोई पिकनिक पे आए हैं। तो वो रात के 2-2 बजे तक हम जोक्स क्रैक करते थे, हंसते थे। और कभी भी हमने ये, मुझे पता था कि एनी टाइम ही कैन स्लिप अवे। डॉक्टर्स ने ये हमें कोई मतलब होप नहीं दी थी, बहुत स्पष्ट बोला था कि ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए।
सो यू नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो गुरु का विश्वास है वो रख के उस टाइम पे हम आगे बढ़े। एंड आज ये आपके सामने है, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये कभी निकल भी आए स्टेज से तो 6 महीने से पहले रिकवर नहीं होंगे। 3 महीने के अंदर इन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। दैट इज माय गुरुजी's महिमा दैट आई वांट टू कन्वे टू